है ना? And from where are we supposed to we started with operating system, right? Just a very brief introduction, just introduction दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का. Am I right? कुछ याद है? Yes, ma'am. Okay. So we will begin with operating system today, right? Just a minute, let me share the screen. Okay, so did anyone remember the definition? What does that mean? What does operating system mean, or why it is used? Can anyone tell me? What is use of operating system? Why it is used? Can you name operating system? Still everyone is joining. Windows. Yes, okay. So is it possible to do any task without operating system? No, ma'am. No, your No, computer ma'am. won't be able to perform any task without computer system, without operating system. Correct. So as we have seen, we are done with computer, mobile devices, data information, web, program and apps, and now we are on operating system, right? So as we have seen a definition. So let me admit. View all. I hope now everyone is done. So what is basically an operating system? How it is possible that whatever we, the user, give input and whatever is gone to hardware, how it is possible that our things are being understood by hardware? So that is through operating system, right? So it is a system software that manages computer hardware, software resources, and provide common services. Ultimately, something that is responsible for managing all the resources and all files. So today we will be seeing in detail what are various functions that operating system do. Okay. So did you remember this? For interaction between application and hardware, what is required? OS. Okay, so what is OS? It a kind of software. Is operating system a software or a hardware? Tell me, chalo. Is it a software or a hardware? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? Software. सॉफ्टवेयर. इट्स अ Software. सिस्टम. यस, सॉफ्टवेयर में दो कैटेगरी आती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन को ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दे सकता है? एनीवन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कैन यू टेल मी? Chrome. Tally RB9. Okay, fine. Word. And what is operating system? It is basically a system software, right? It is a system software that manages various computer hardware resources and provide common service for computer programs. They are found on many, almost all the many devices. Like they are obviously found on computers, and they are also found in cell phones today, right? That's why it is said many devices, not only in computer, even in cell phone they are found. So what does they basically do? They perform all basic tasks like managing file, processes, memory. So how do they manage file? How do they manage process and memory? Like that we will be studying today. So you have got the basic definition. What is OS? It is a system software or hardware? System software. System software. Okay. Why it is used? What is its basic task? Which kind of management does it do? It manages file, memory, process, handles input and output. And various input-output devices are controlled by operating system. Means if I am typing something and that goes to hardware, इन चीज के बीच में कौन रोल प्ले करता है? मैंने जो भी लिखा वो हार्डवेयर में स्टोर हो रहा है. मेमोरी कौन सी खाली होनी चाहिए? रैम मेमोरी में कब डेटा जाना चाहिए, कब डेटा नहीं जाना चाहिए.
प्रोसेसर या एएलयू में डेटा कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो मैनेज करता है वो क्या है, व्हाट इज दैट? OS. System software. OS. Yes, system software and OS both could be correct, right? Operating system is a software, so that this system software it is every एक सी प्रोग्राम है, सी सॉफ्टवेयर है, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, सिर्फ सी में जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट करने में काम करेगा। लेकिन वो जब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो रैम में कितना मेमोरी बाकी रहना चाहिए, कौन सा मेमोरी कौन से प्रोग्राम को अलोकेट होना चाहिए, ये सब मैनेजमेंट कौन करता है? कौन सी मेमोरी में से अभी डेटा फेच हो जाना चाहिए, कौन सा डेटा प्रोसेसर में जाना चाहिए, प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में जाना चाहिए, ऐसा सब होता है ना कंप्यूटर सिस्टम में, जब कंप्यूटर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, राइट? सो हु लुक्स आफ्टर दिस, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? System software. यस, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो अभी तक तुम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या समझे? वो एक सॉफ्टवेयर है, क्या करता है वो? नहीं समझ में आया कुछ भी तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत अगर कुछ समझ में आया तो क्या समझ में आया, 1%, 2%, क्या समझ में आया? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, पर उसका काम क्या है? ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे पहले जब डेटा हम इनपुट करते हैं, कौन से डिवाइस के थ्रू डेटा इनपुट करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू? Yes, keyboard. ओके, कीबोर्ड के थ्रू हमने डेटा इनपुट किया, फिर वो डेटा कीबोर्ड के थ्रू इनपुट हुआ। अब मैंने ऐसा इनपुट करा है a प्लस बी इक्वल टू व्हाट इज a प्लस बी, राइट? तो मैंने एक प्रोग्राम सी में बनाया, उसमें एक स्मॉल इंस्ट्रक्शन लिखा है इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी, और प्रोग्राम रन कर दिया। वो प्रोग्राम रन कर दिया, अब वो प्रोग्राम का क्या होगा? उस प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होंगे ना। तो सबसे पहले उस प्रोग्राम क्या मेमोरी एलोकेट होगी क्या, फिर वो प्रोसेसर में जाएगा प्रोसेसिंग के लिए? बताओ। सबसे पहले टेम्पररी स्टोरेज उससे रैम मिलेगी, रैम के बाद वो प्रोसेसिंग के लिए कहा जाएगा, वेयर इट विल गो फॉर प्रोसेसिंग ALU, राइट? ओके, एक्चुअली इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये CPU और ALU वाला है ना, ये यहाँ पे है मदरबोर्ड प्रोसेसर्स, इसलिए तुम्हें शायद नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, लेट इट बी, रुको, वेट, लेट मी कम टू यू। पहले मैं तुम्हें ब्लॉक डायग्राम समझा दूं। तुम्हें ये पता है कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, थोड़ा बहुत पता है? तो मैं पहले ब्लॉक डायग्राम समझाती हूँ, ठीक है FI? ओके Okay, ma'am. फिर हम Okay, ma'am. सिस्टम डन। चलो, पहले ब्लॉक डायग्राम ही होना चाहिए था। वन ओके, लेट्स स्टार्ट विद ब्लॉक डायग्राम। बहुत बेसिक फंक्शनल समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक फंक्शनैलिटी समझेंगे, ठीक है? तुम्हें जो कंप्यूटर में दिखाई देती है वो 3 यूनिट्स, कौन कौन सी यूनिट्स दिखाई देती है? तुम तुम्हारे सामने अगर कोई लैपटॉप रखा है तो उसमें तुम क्या क्या देख सकते हो? मॉनिटर देख सकते हो, Yes, ma'am. कीबोर्ड देख सकते हो, Yes, ma'am. Yes. ओके। तो कीबोर्ड क्या है? दैट इज इनपुट यूनिट। हम कभी भी कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं तो व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर इनपुट यूनिट सो दैट वी कैन फीड अ डेटा, गिव अ डेटा टू कंप्यूटर। सो इट इज इनपुट यूनिट, एंड देन उसके बाद हमने इनपुट दिया, उसके बाद क्या होता है? हमने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल पढ़ी है, हैव वी स्टडीड डेटा प्रोसेसिंग साइकिल? ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम।
इनपुट, जब भी तुम इनपुट देते हो पीसी में, तो क्या होता है, पहले इनपुट यूनिट के थ्रू यू कैन गिव इनपुट, उसके बाद आपका डेटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है 4 इक्वल टू 4 प्लस 5, तो फिर क्या होना चाहिए, 4 और 5 का एडिशन होना चाहिए, 9 शुड बी डिस्प्लेड, करेक्ट। 4 और 5 का एडिशन होना चाहिए, 9 शुड बी डिस्प्लेड। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन को हम प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो इनपुट देते हो वो डेटा इनपुट जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है, और फिर क्या डिस्प्ले होता है, रिजल्ट। फाइनली यू गेट द आउटपुट। ये बीच का मैं अभी समझाती हूँ, तब तक तुम्हें 2 यूनिट समझ में आई। वो इसलिए भी ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि वो तुम देख भी सकते हो, राइट। यू गिव इनपुट, देन योर डेटा गेट्स प्रोसेसेस एंड द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। सो अगर मैंने कुछ भी इनपुट दिया, मान लो मैंने इनपुट दिया है यहाँ पे एक्सेल, राइट। चलो अभी मैंने ये इनपुट दिया इक्वल टू 7 प्लस 8, ये क्या हुआ, इनपुट। एम आई राइट, राइट। Yes, ma'am. अब Yes, मैं एंटर प्रेस करूंगी तो क्या होगा, इसका एडिशन हो जाएगा, राइट, एडिशन हो जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो गई, एडिशन हो गया, और उसके बाद आ गया उसका आउटपुट, दैट इज 15। तो इतना करने में 3 चीजें हुई, क्या, मैंने इनपुट दिया, देन वो इनपुट प्रोसेस हुआ, कैलकुलेशन हो गया, और आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। मैंने इनपुट दिया कीबोर्ड के थ्रू, दिस वाज माय वन इनपुट, एंड देन ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर मेक्स प्रोसेसर। प्रोसेसर ने मेरा ये कैलकुलेशन किया, और मेरा आउटपुट मैं कहाँ देख सकती हूँ, ऑन मॉनिटर। तो आउटपुट यूनिट में मेरे पास डिस्प्ले आ गया। इतना समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गिवन इनपुट, प्रोसेसिंग डन, आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होता है वो देखते हैं। जब मैंने इनपुट दिया यहाँ पे, तो ये इनपुट क्या टेम्पररी कहीं पे स्टोर होगा, कहीं तो जाके स्टोर होगा ना, हवा में तो नहीं रहेगा। एम आई राइट? जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे वो कहीं पे स्टोर होगा। वो कहाँ स्टोर होता है, बेसिकली रैम में स्टोर होता है, एंड रैम इज कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज। गॉट माई पॉइंट? अभी क्या है, फाइनल आंसर नहीं आया। अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास है मेरे पास 7 इंटू 8, ठीक है। अभी ये क्या फाइनल आंसर है मेरा? इज इट माई फाइनल आंसर? नो मैम। 7 और 8 कहीं पे स्टोर करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, right? So I will be storing 7 and 8 somewhere temporary. So where this 7 and 8 is stored? It is stored in primary storage. Example of primary storage is RAM. Okay, done? ठीक है, यहां से टेम्पररी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर हो गया। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है, कैलकुलेशन। 7 इंटू 8, तो कैलकुलेशन कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। हु डज द कैलकुलेशन? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों मिलके प्रोसेसर बनाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज 2 पार्ट, ALU and CU. ALU and CU together makes ALU and CU together makes what? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब इसका कैलकुलेशन होना है, तो टेम्पररी स्टोरेज में से कैलकुलेशन कहाँ होगा, ALU। ALU विल डू द कैलकुलेशन, और उसके बाद ये कैलकुलेशन मुझे कहाँ दिखाई देगा, FY आउटपुट यूनिट में, और आउटपुट में। और अगर मुझे इसे परमानेंटली स्टोर कर देना है इस फाइल को, तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगी, फिर ये स्टोर हो जाएगी सेकेंडरी स्टोरेज, यानी हार्ड डिस्क पे। Got my point? Yes, ma'am. Okay. Done. Okay. Okay. So are you all clear with block diagram? So see. Yes, ma'am. Device. जैसे हम इनपुट डालते हैं, इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट जाता है, वो इनपुट कहाँ जाता है, सबसे पहले जो भी इनपुट मैंने डाला वो टेम्पररी स्टोर होगा। कौन सी मेमोरी में स्टोर होगा,
प्राइमरी स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी रैम। मेमोरी, टेम्पररी स्टोरेज। ओके, अब मुझे उस जो भी डेटा डाले उस पे कैलकुलेशन करनी है, तो वो कैलकुलेशन कहाँ पे होगी? ALU। ALU विल डू इट। तो ये कैलकुलेशन होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, एंड ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन। ओके, चलो कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद अब कैलकुलेशन रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले होगा? आउटपुट में। आउटपुट। आउटपुट आउटपुट। यूनिट। ये जो भी रिजल्ट है वो मुझे परमानेंटली स्टोर करना है, तो वेयर दिस विल गो? सी, ALU से यहाँ से रिजल्ट आया, इट विल देन स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज हार्ड डिस्क। क्या आज से 10 दिन बाद भी मुझे फिर ये फाइल खोल के देखनी है तो आई कैन see it, because secondary storage is used for permanently storing data and primary storage is used for storing data temporary. Got my point, everyone? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is your block diagram, right? अब बेसिक समझ में आएगा ना इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है? Will you be able to understand now? यस मैम। ठीक है, अब आगे जाते हैं। Yes, ma'am. ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक 5 ऑपरेशंस होते हैं। व्हाट आर दे? You input the data, process of entering data in instruction, that is inputting. Then you save the data, storing the data, saving data in instruction to make them available for initial or additional processing. Then you store data either for temporary purpose or for permanent purpose. You store data, and then what you do? Your data is then processed. So how it is processed? Maybe अगर आपको कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन करना हो, लॉजिकल कंपैरिजन करना हो, फॉर दैट योर प्रोसेसिंग इज डन। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब क्या चाहिए मुझे? कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद क्या चाहिए? आई वांट टू सी द रिजल्ट, करेक्ट है ना? प्रोसेसिंग होने के बाद अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू सी द रिजल्ट, सो दैट रिजल्ट can be displayed on monitor, can be printed on printer. And then next is controlling, directing the manner and sequence in which all above operations are performed. Fifth operation is control करना, वो control unit करता है। मतलब अगर मैंने a plus b दिया, या फिर अगर मैंने ऐसे लिखा a minus b, तो क्या होना चाहिए? b में से a माइनस होना चाहिए कि a में से b माइनस होना चाहिए? या फिर कोई भी ऑपरेशन का जो सीक्वेंस होता है, दैट सीक्वेंस इज टेकन केयर बाय कंट्रोल यूनिट, जिसका काम होता है कंट्रोलिंग करना। ठीक है, तो आई होप कि ये 4 तो एकदम क्लियर हो गए होंगे। कंट्रोलिंग में कंट्रोल यूनिट के वक्त समझाती हूँ तुमको, राइट? तो डिड यू गेट आइडिया अबाउट दिस 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर? Input, Yes, ma'am. process and output. Okay. Now what does input do? It accepts or read the instruction. It convert this instruction and data in computer acceptable form, and it supplies converted instructions and data to computer for further processing. ये इनपुट यूनिट के थ्रू, इनपुट यूनिट जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, उसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं। फिर ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाते हैं? ये अल्टीमेटली या तो इन पे ऑपरेशंस होता है या मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो दीज इंस्ट्रक्शन नीड टू बी कन्वर्टेड। सो इनपुट यूनिट देन कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म. It supplies the converted instruction and data to the computer system for further processing. For further processing, these instructions are then given. So input unit का काम क्या है? It accepts the instruction, converts this instruction in computer acceptable form. Then output unit क्या करता है? It accepts the results produced by the computer. एक बार ALU ने कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे दिया, तो ये आउटपुट यूनिट accepts the result which are in code form and hence cannot be easily understood by us. जब मैंने इनपुट दिया तब क्या हुआ? ये कंसिडर करो कि ये डेटा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसमें उसका कैलकुलेशन हुआ, रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। फिर ये रिजल्ट कौन से फॉर्म में अभी मिला है? बाइनरी फॉर्म में। तो आउटपुट यूनिट क्या करेगा? रिजल्ट्स एक्सेप्ट करेगा और इन कोड को कन्वर्ट करेगा ताकि ह्यूमन उसे रीड कर सके, एंड देन इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड. And then is your storage unit, which is basically divided into 2 parts, primary and secondary. As I told you, primary storage is used for temporary storing the data, and secondary storage is used for permanently storing the data.
तो प्राइमरी स्टोरेज का एग्जांपल होता है रैम। जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं ब्लॉक डायग्राम में, तो यहाँ पे डेटा स्टोर हुआ, फिर कैलकुलेशन हुआ, फिर यहाँ डेटा स्टोर हुआ, फिर जैसे ही तुमने पीसी बंद कर दिया तो क्या होगा, प्राइमरी स्टोरेज में जो भी डेटा स्टोर है वो चला जाएगा, लेकिन तुमने फाइनल जो फाइल सेव करी है वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होती है, तो दैट डेटा इज परमानेंटली स्टेज देयर, वो डेटा यहाँ पे परमानेंटली रहता है, इट डज नॉट गोज अवे। ठीक है, तो हम जब कंप्यूटर्स में काम कर रहे होते हैं हमें 2 तरीके की मेमोरी चाहिए, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी इज यूज्ड फॉर temporary storing data and secondary is used for permanently storing data. So this was your input unit, output unit, memory. Data instructions are processed, intermediate results of processing are also stored, final results of processing are also stored. Intermediate results are stored in RAM, that is primary storage, and final results are stored in secondary storage. So this was your storage unit. Then comes your central processing unit. It has 2 parts, ALU plus CU. ALU क्या करता है, as I told you कि सारे calculations, data processing ALU में होंगे. Control unit is responsible for controlling. Control unit of a computer system manages and coordinates operations of all other component of computer system. It is responsible for managing and coordinating operations of all components of computer सिस्टम। मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शंस कब एग्जीक्यूट होने हैं, पहले इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट होना है या इंस्ट्रक्शन I2 एग्जीक्यूट होना है, ऑल दिस काइंड ऑफ कंट्रोलिंग पार्ट इज डन बाय CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और ALU मिलके मेक्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिड यू गेट brief idea about block diagram of computers, everyone? How data is input, processed, output. When processing, it may be required that data is when it comes to storing, it may be required that data is stored temporary, and data may also be stored for more duration, right? Okay, so chalo, tell me, did you get the idea about block diagram of computer? Yes ki no? Anyone, any confusion in this? No, ma'am. Done? Okay, ठीक है, अब हम बेसिक ऑपरेशंस पता है। नाउ लेट मी गो टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हम देखते हैं अब तुम समझ पाते हो या नहीं, अगर नहीं समझ पाते तो इसके रिलेटेड कुछ और बेसिक होगा दैट वी कैन सी, राइट? ओके, सो बेसिकली इतना तो समझ में आया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो कौन मुझे बताएगा, चलो ऑपरेटिंग सिस्टम और ALU के बीच का डिफरेंस बताओ। बहुत एकदम डिफरेंट ही कंपैरिजन है, बट बताओ मुझे OS क्या करता है और ALU क्या करता है। पहले बताओ, ALU हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर है। प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? प्रोसेसर बताओ, चलो हार्डवेयर, right? ALU is a part of processor, right? We can say that CPU or processor is hardware. CPU or processor is hardware. Operating system क्या है? Software. ALU क्या करता है? ALU क्या करता है? Okay. ALU क्या करता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, प्रोसेसिंग करता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट इज समथिंग दैट इज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। इट इज समथिंग दैट इज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है? This is responsible for making communication possible between user and hardware. User और hardware के बीच में there is a communication possible using operating system. Did you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I hope कि basic definition of OS समझ में आ गया होगा. Let us move further. Operating system is basically a program that acts as interface between user and computer hardware. तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये OS क्या क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजिंग, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी,
job accounting, error detecting, control over system performance, how system is performing well, performing not good, coordination between other software and users. So all these tasks is looked after by operating system. हम एक एक करके देखते हैं. जो तुम्हें क्या समझ में आता है मेमोरी मैनेजमेंट यानी क्या? What do you mean feel कि how operating system is responsible for memory management? Just think कि क्या हो सकता है? Memory management मतलब memory management यानी क्या? What do you mean by memory management? What do you think? Yes, try. What do you think? Patel Rutika, did you unmute it, beta? Can you tell me? मेमोरी मैनेजमेंट मतलब ऐसा कुछ होगा क्या कि अगर इनपुट हम देते हैं तो रैम में डेटा रह रहा है. एक और चीज मैं बताती हूँ. अभी है ना रैम रोम शायद हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में सेकंड यूनिट में, लेकिन बाय दैट टाइम लेट मी टेल यू प्रोसेसेस भी हम सेकंड यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे, बट बाय दैट टाइम लेट मी टेल यू रैम और हार्ड डिस्क. बताओ इसमें से कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है? इसकी कैपेसिटी स्टोरेज हार्ड डिस्क की. चलो हार्ड डिस्क. गुड स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, राइट? तो अगर मैं कोई केतन पटेल, अगर मैं कोई इफ से सपोज व्हाट आई एम डूइंग इज, अगर मैं कोई डेटा स्टोर कर रही हूँ, राइट, टेम्पररी आई एम स्टोरिंग सम डेटा, तो तुम्हें क्या लगता है एट अ टाइम रैम में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? रैम की कैपेसिटी है क्या उसमें टेराबाइट्स इतना डेटा स्टोर हो सकता है? नहीं. नहीं हो सकता. मतलब एट अ टाइम What is terabyte? व्हाट? मैम टेराबाइट्स मतलब आपको बिट और बाइट पता है? बिट और बाइट, बिट पता है? बिट और बाइट नहीं पता तो फिर टेराबाइट समझ में नहीं आएगा. मैं बताती हूँ. बिट और बाइट सब बताइए. स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट, जैसे हमारा सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर मीटर यूनिट होता है, राइट? वैसे जो स्टोर होता है ना डेटा, स्टोर होता है हार्ड डिस्क में. तो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में बिट्स के फॉर्म में. कैसे? 1 बिट, 2 बिट, ये बिट के फॉर्म में. 0 बिट, 1 बिट, 0 बिट, 1 बिट, राइट? तो 1 बाइट इज 4 बिट्स, राइट? 1 बाइट इज 4 बिट. इस तरीके से मतलब एक स्टोरेज यूनिट कैलकुलेट होती है बिट में. अगर आपका सपोज, ये पॉसिबल तो नहीं पर सपोज अगर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी 4 बिट्स, तो आपके हार्ड डिस्क में कितने बिट स्टोर हो सकते हैं? 4 बिट्स. 0101. So bit are used for specifying storage capacity. बेसिक समझ में आया कि बिट्स क्यों यूज होता है? बिट्स क्यों यूज होता है बेसिक समझ में आया क्या? इट इज यूज फॉर मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी. अगर मैं कहती हूँ मेरी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 4 बिट है, मतलब मेरी हार्ड डिस्क में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? ओनली 4 बिट्स का. इतना समझ में आया क्या बेटा? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं नाउ आई विल शो यू अ चार्ट. जैसे मीटर, सेंटीमीटर, कितना मीटर कितना सेंटीमीटर वाला होता है ना. सो दिस इज योर मेजरिंग सिस्टम. बिट यानी 0 and 1, 1 निबल यानी 4 बिट. सॉरी, 1 बाइट इज 8 बिट, नॉट 4 बिट. Mistakenly I have wrote 4 bit. 1 byte is 8 bit and 1 nibble is 4 bit. वैसे ही एक वर्ड यानी 16 बिट्स मिलके एक वर्ड बनाता है, और 1024 बाइट यानी 1024 इंटू 8 बिट्स मिलके 1 किलोबाइट बनता है. वैसे 1 टेराबाइट कैसे बनता है? 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट. सो इट इज वेरी हाई कैपेसिटी. अब समझ में आया? FI, दिस इज टेराबाइट. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज टेराबाइट. डन. तो मैं क्या बोल रही थी कि व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ, अगर मुझे डेटा मैनेज करना है, राइट, डेटा मैनेज करना है. सो से सपोज के मेरे पास बहुत सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कैलकुलेट करने हैं, तो तुम्हें क्या लगता है एक साथ सारा डेटा रैम में चला जाएगा?
सारा डेटा रैम में चला जाएगा, लाओ जितना भी डेटा इनपुट दिया है लाओ सारा डेटा इनपुट दे दो, सब एक साथ रैम में डाल देती हूँ, चलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा सब एक साथ रैम में डाल देते हैं, पर रैम की कैपेसिटी तो उतनी है ही नहीं। फिर क्या करेंगे सोचो। अगर तुम्हें चीजें मैनेज करनी है, जैसे कि तुम्हें एक रूम में तुम्हें 100 लोगों को वैक्सीन लगवानी है, पर तुम्हारे पास रूम में कैपेसिटी है कि एट ए टाइम 10 ही जन आ सकते हैं, तो तुम क्या करोगे? F5। तुम्हें 100 लोगों को वैक्सीन लगवानी है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ 10 लोग ही आ सकते हैं रूम में, तो तुम क्या करोगे? टर्न बाय टर्न। हाँ, पहले 10 लोगों को लगवा दोगे, फिर 10 लोगों को बाहर भेज दोगे, है ना? फिर दूसरे 10 Yes, लोगों को ma'am. लगाओ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऐसे ही मेमोरी मैनेज करता है। अभी इतने इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी दे देगा, फिर बोलेगा चलो तुम बाहर जाओ, तुम्हारा काम हो गया। दूसरों को मेमोरी देगा, फिर वो बोलेगा अच्छा तुम डेटा तुम यहां से निकलो और तुम परमानेंट स्टोरेज में स्टोर हो जाओ, ठीक है? बाकी दूसरा डेटा ले लेगा, फिर दूसरे डेटा को और टेम्पररी होल्ड करेगा और दूसरे डेटा को एग्जीक्यूट करेगा। लाइकवाइज एक साथ तो सारा डेटा आ नहीं सकता। अभी कौन सा डेटा रैम में होना चाहिए, कौन सा डेटा नहीं होना चाहिए, हु मैनेजेस दिस? ये मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes, this is how it manages memory. This is how it manages memory. Got my point? Yes. Done. So let us start then. Let us start. मतलब start तो हम कर चुके हैं, लेकिन now let us see कि ऐसे सारे टास्क ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। So memory management. It refers to management of primary memory or main memory. What is example of primary memory? मैंने अभी बताया है। What is example of primary memory? बोलो। कौन सा जो टेम्पररी स्टोर करता है डेटा, बताओ। रैम। RAM. रैम, करेक्ट। रैम, यस, करेक्ट। ओके, जस्ट वेट है बेटा। ओके, चलो। Okay, so memory management refers to management of primary memory or main memory. It is a large area of, so basically RAM, as you all told me, कि basically it refers to RAM. Main memories, arrays of word or bytes where you can store lots of data. Main memory provides fastest storage that can be accessed to CPU. CPU is what? CPU is combination of which two unit? कौन सी दो यूनिट मिलकर सीपीयू बनता है? सीपीयू कॉम्बिनेशन ALU एंड कंट्रोल यूनिट, करेक्ट। तो हमारा डेटा क्या होता है? मैंने जो भी इनपुट दिया वो डेटा प्रोसेस होता है, फिर समझो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, राइट? इट द डेटा गेट्स प्रोसेसेस एंड देन इट गेट्स परमानेंटली स्टोर्ड, राइट? सो ये वॉट एवर द लाइक journey is, I can say. So how it works is my data initially is inside given input by keyboard. उसके बाद ये डेटा प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस होगा उसके बीच में ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू। तो मेन मेमोरी इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ फास्ट स्टोरेज। मेन मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, वहां से सीपीयू फटाक से ले सकता है। अगर ये सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा स्टोर उठाने जाएगा ना, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। यही पर्पस होता है मेन मेमोरी का। देयर इज अ इंटरमीडिएट मेमोरी, देयर इज अ स्मॉल टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी, जिसकी वजह से डेटा कैन बी एक्सेस्ड वेरी फास्ट बाय सीपीयू। फिर
मेन मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, दिस विल बी एक्सेस वेरी फास्ट एंड देन इट विल गोज टू सीपीयू, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये कंप्लीट करके फिर देन अगेन आई विल कम, ठीक है? फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी इन द मेन मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेन मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे ही मेरा डेटा मैंने कुछ भी इनपुट करा वो सबसे पहले आएगा मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में से फिर वो प्रोसेसर में जाएगा। मेन मेमोरी का पर्पस क्या है? डेटा फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सो इट इज यहां से जब प्रोसेसर डेटा उठाता है ना तो वो जल्दी उठा सकता है। अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में से उठाने गया ना तो इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो यहां से वो जो डेटा उठाता है दैट वो बहुत फास्ट एक्सेस डेटा उठाता है, बहुत फास्टर डेटा उठाता है। सो इट कीप्स ट्रैक डाउन। For program to be executed, it must be in main memory. Done. So अब operating system main memory management के लिए करता क्या है? It keeps track of primary memory, that is what part of area is in use, by whom, what part is not in use. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि 10 एक रूम में 10 की ही कैपेसिटी है, तो पहले 10 को बाहर भगा देंगे, बाहर जाने को बोलेंगे और फिर नेक्स्ट 10 को अंदर लेंगे, ठीक है? अब इस रूम में से 5 लोग बाहर चले गए, बाकी के 5 बाकी, तो तुम क्या करोगे? अभी इस रूम में 5 ही है, 5 बाहर चले गए तो 5 की जगह खाली है, तो तुम क्या करोगे? F5 5 को और ऐड कर दोगे और 5 को ऐड कर दोगे, है ना? तो तुम क्या करो? यू आर कीपिंग ट्रैक, कौन सी खाली जगह है, कितने लोगों ने यूज करी है, कौन से लोगों ने यूज करी है, लाइकवाइज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी मैनेजमेंट करता है वो ऐसे ही करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, कौन सा पार्ट यूज में है, कौन सा पार्ट यूज में नहीं है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग OS डिसाइड्स व्हिच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। OS डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेसर को मेमोरी मिलेगी, कौन से प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होगी या नहीं होगी। जब मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं ना, तो कौन से प्रोसेस को अभी मेमोरी देनी है और कौन से प्रोसेस को बाद में मेमोरी देनी है, कौन डिसाइड करेगा? 4 प्रोग्राम एक साथ है पर मेन मेमोरी में तो 2 प्रोग्राम की जगह है, कौन से 2 को आगे जाना है, कौन से 2 को आगे नहीं जाना है? हु विल डिसाइड? OS। इट एलोकेट्स मेमोरी व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्टेड डू टू सो। ये मेमोरी कब एलोकेट करता है? जब कोई भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो हु एलोकेट्स मेमोरी कि इस प्रोसेस को मेन मेमोरी में जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या कितनी मिलनी चाहिए, ये एलोकेशन कौन करता है? एलोकेट्स मेमोरी जब प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है कि ये मेरा प्रोग्राम इसे एग्जीक्यूट कर दो भैया। OS डिसाइड्स। तो OS क्या क्या काम करता है? OS ट्रैक रखता है कि मेरे पास मेमोरी में कितनी जगह है, कितनी मेमोरी यूज में है, कितनी खाली है। OS डिसाइड करता है कि मल्टीपल प्रोग्राम आए तो कौन सा अभी प्रोसेस होना है और कौन सा बाद में प्रोसेस होना है। OS सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इट विल डिसाइड कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा और बाद में कौन सा प्रोसेस होगा। उसके बाद इट एलोकेट्स मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्टेड टू डू सो। फिर वो क्या करता है? फिर वो मेमोरी एलोकेट करता है प्रोसेस को कि कौन से प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है। फिर प्रोसेस खत्म हो गया, प्रोसेस का काम खत्म हो गया, अब उसे मेमोरी में से क्या करना होगा? हटा देना होगा। उससे प्रोसेस में से उस प्रोसेस को मेमोरी में से हटा लो ताकि मेमोरी खाली हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी अलोकेट भी करता है और डीएलोकेट भी करता है। डीएलोकेट मेमोरी व्हेन प्रोसेस नो लॉन्गर इन नीड। अब जब प्रोसेस की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन को तो उसके पास उसको मेन मेमोरी में से हटा देते हैं ताकि मेन मेमोरी खाली हो जाए दूसरे प्रोसेसिंग के लिए। करेक्ट एवरीवन? Yes. तो तुम्हें आज समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मेमोरी मैनेज करता है? डिड यू गेट आइडिया? तो आज हमने ब्लॉक डायग्राम देखा और मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा टास्क क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। करेक्ट? These are various tasks: memory management, processor management, device management. So after memory management, we will be seeing processor management. So till here, basically, actually, it should be the part of syllabus. Syllabus का ये पार्ट होना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, राइट? तो आज बेसिकली ब्लॉक डायग्राम सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना?
कौन सी 5 Yes, यूनिट होती है? अच्छा, कौन सी मेन यूनिट्स होती है? कौन सी मेन यूनिट्स होती है ब्लॉक कंप्यूटर में? किसी भी कंप्यूटर में कौन सी मेन यूनिट्स होती है? इट्स अ मेन यूनिट ऑफ एनी कंप्यूटर. उसके बिना इट वोंट बी ऑफ एनी यूज. बताओ. चलो, अब मैं आगे आगे नहीं जा रही हूँ. मैं प्रोसेसर मैनेजमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में जाऊंगी. वी आर लेफ्ट विथ 3 मिनट्स ओनली, राइट? तो उससे पहले मुझे बताओ, आज पहले ये बताओ, ये गेमिंग कौन है? गेमिंग, हु इज दिस गेमिंग? गुड. I don't want this nuisance. I'm telling you, convey this. मैम. हाँ, बोलो बेटा. मैम, एग्जाम की डेट आ गई है? नहीं, फर्स्ट ईयर की डेट अभी नहीं आई है. सेकेंड ईयर की डेट आ गई है. क्यों? पूछो. तुमने कहीं ऐसे सुना है कि डेट आ गई है ऐसा? अभी फर्स्ट ईयर के, अभी तो तुम्हारे एक ही लेक्चर हो रहे हैं मेरे ना. फ्रेंड बोलो. क्या मेरे बेटा? फ्रेंड ने कहा उसके कॉलेज में आ गया है डेट, इसलिए. तुम्हारा फ्रेंड कौन से कॉलेज में पढ़ता है? GLS. ओके. हाँ, जीएलएस में फर्स्ट इंटरनल स्टार्ट हो गई है, लेकिन उन लोग की तो अभी सिल्वर ओक में अभी नहीं आई है. तुम्हारे तो अभी 1 लेक्चर ही चल रहे हैं ना, राइट? yes, ma'am. यस मैम. ओके. उसके तो हाँ, उन लोग के वीकली 5 4. लेक्चर आते हैं उसमें. हाँ, 4 होते हैं. 4 थियोरी के, 4 प्रैक्टिकल के, 4+1. तो दिन के 5 लेक्चर मैम. हाँ, दिन के 5. हाँ, राइट, दिन के 5. तो हमारा ऑफलाइन कब होगा? आपका ऑफलाइन वो तो आपको कोऑर्डिनेटर ही बता सकते हैं बेटा. मैम आई थिंक दिवाली के बाद होगा. मे बी, नो आइडिया, आई कैन नॉट कमेंट. अभी मैं कुछ बोलूंगी तो तुम बोलोगे कि मनिका मैम ने बोला था, हुआ तो नहीं. इसलिए मुझे तो कुछ पता भी नहीं है बेसिकली, इसलिए आई कैन नॉट से. ओके, सो आई एम जस्ट कैप्चरिंग दिस अटेंडेंस, then you can leave the lecture. और हम नेक्स्ट टाइम, आज हमने बेसिकली ब्लॉक डायग्राम देखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखे हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग फर्दर और दूसरे टास्क क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, राइट? प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड हाउ एरर हैंडलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आर डन बाय दैट वी विल बी सीइंग इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, give me 2 minutes and then right now don't please leave the lecture beta. मैं ये पूछ रही थी कि ब्लॉक डायग्राम में कितने यूनिट्स है, वो तो बोलो. First input, हाँ, second CU, third ALU, हाँ, ALU CLU fourth together makes, ALU and CLU together makes first CPU, correct? CPU. CPU है. हाँ, फिर uh, और क्या चाहिए होता है कंप्यूटर में काम output. करने के लिए? मेमोरी. ओके, यस, मेमोरी, राइट. मेमोरी कौन कौन सी 2 तरीके की होती है? Primary and secondary. प्राइमरी एंड सेकेंड. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? Primary memory में डेटा परमानेंट सेव नहीं होता. करेक्ट, राइट. और प्राइमरी मेमोरी का और पर्पस क्या है? क्यों प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? लाइक उसका फायदा क्या है, एडवांटेज? इट स्पीड अप, वो दैट इज वेरी मच फास्टर. तो उसमें जो भी डेटा होता है वो सीपीयू तक बहुत फास्ट जा सकता है, एंड देन इट कैन बी एक्सेस्ड इजीली, राइट? दिस इज Yes. एडवांटेज. यस, ओके. Okay, Afar, that's it for today. You can leave the lecture. In next lecture, we will be moving further with operating system. Okay, that's it for today, beta.